Anybody want to join? So yesterday we were describing how the axis ABC axis are referred on the rotor side. As you know, in the transformer, all the calculations are done either on the primary side or on the secondary side. So we have to refer all quantity from primary to secondary if we want to make analysis on the primary side, or if we want to make analysis on secondary side, then all the quantities are referred on the secondary side. Similarly, here all the parameters are referred from one side to another side. So here in our case, we referred all the quantities from primary side, or you can say from stator side to the rotor side. That's why all the ABC axis, ABC are the three axes referred on the stator side. They are referred on the referred on the rotor side. And rotor side, the D, small d and small q axis. Rotor is represented by this D axis. So D and Q axis are considered on the rotor, and the ABC are on the stator. They are referred when on the rotor side. Then they are represented by a Park transformation, and we know what is the that transformation, how it is done, that we have seen yesterday. Then we also seen, means when everything is referred on this side, then all the equations will be referred on the rotor side. And in general, just to see that, say flux associated with the phase A, means flux associated with this coil is not only the current flowing into the A, not only the current flowing into the phase A, but it will also be, flux of this will also be related with the current flowing of in phase B, current flowing in bit C, current flowing in the winding F, current flowing in the winding G, current flowing in the winding H and K. Means all the currents causes the flux to flow in the phase A direction. So the flux phase A, phi A, is represented by LAIA, means phi A will be proportional to the IA plus IB, means LAIA, LAB, IB, the constant, means it will be proportional to IA, and it will also be proportional to the, means LAIA then plus LAIB plus LACIC, means these are the constant of proportionality. So IA will be related with the IA, IB, IC in this way. IB, IB, IC, not only that, IF, IG, IH, IK, all the current with some proportionality constant depending upon their positions. Similarly, flux in phase B will depend upon all the currents IA, IB, IC, and depending upon their proportionality constant, they are called the inductances. Similarly, phase C, and similarly, flux flowing into the F axis, flux flowing into the H, G, and K, all the fluxes. Here you see, here flux flowing into this will not only because of this, but because of all the currents. So that's why this equation is written like this. This is written as a LSS. In short, it is written as a LSS. LSS means stator to stator side. A stator to stator means here this ABC are there, means only stator quantities are there. Here F, H, G, K, only rotor side quantities are there. AF and FA means stator to rotor or rotor to stator. So in this way, they are represented in short. Flux phi ABC, phi FHGK, they are related with IABC, IFHG. This equation is written in short in the matrix form like this. Now we have to find out what the value of this. We have to find out the values of these quantities, matrix. So first of all, let us have this LAF. LAF means inductance in phase A because of field winding. So as I told, means LAF, if you see here, what is the LAF? Means inductance because of field. This, if you multiply this here, so it is the IF.
LAF IF means because of the field current, what is the flux in the phase A? That is given by IF LAF. LAF IF is the flux. So flux linkage in the phase A because of the field current IF. This you see, it will depend upon, if you see this figure, if you see this figure again here, if you see this figure, that here this, because of this field current, what is the flux here? That will be no doubt because of this field current, there will be some flux here. That will be the function of the field current, but also will be the function of this angle theta. If theta is zero, so whatever is this, if theta is zero, then whatever the field current is there, and according to the field current into this, there will be the flux linkage with this. So suppose theta is zero, so total flux of this is IF. Because of IF, there will be flux here. Because of IF current, there will be flux here. Because this current will cause some flux, that part of flux will also go into that. And that if it is zero, means permanently, if it is zero, then it will be, say, depending upon the mutual coupling between the two, इनके बीच में कितना distance है, so it will be, say, M, and or you can say it is MS. Now MS, but if theta is there, theta 0, then it is MS. When theta increase, when theta 90, it will be 0. So it will be M cos theta. Means because of this current, flux here will be the M cos theta into IF. And so inductance will be the flux per unit current. So divided by IF, it is M cos theta. So because of this, current here will be the M cos theta. Current, because of this current in the V phase, it will be the, इसकी वजह से V cos theta, M cos theta. तो इसमें क्या होगा? The angle between them is the 2 pi by 3 minus theta. So it will be the 2 pi by MF cos of 2 pi by 3 minus theta. इसमें कितना होगा? 2 pi by plus theta. So this equation, simply you can say here, this equation, the three equation, LAF A का F से और F का A से, it is MF cos theta. B के साथ MF cos theta minus 2 pi by 3 theta plus 2 by 3, because cos theta is equal to minus cos theta, so it can be written like this. तो AF FA, A का F से या F से A से जो mutual linkage होगा, that is because of MF according to this. Okay, so I think these three equations are clear. Similarly, एक flux inductance or you can say flux linkage in the phase A because of the H. तो MH cos theta, उसके बीच में H और H, because F and H both are on the same axis. F means field current और H is the H binding. Both are on the same axis. तो जो एंगल थीटा इसके साथ है वही इसके साथ है, MH cos theta. Similarly, B और C के साथ MH cos theta minus 2 by 3 और इसके साथ theta plus 2 by 3. Similar and G और K, देखिए F and H are on the same axis and G and K they are on 90 degree. ये D axis पे, F and H are on D axis, H and G are on Q axis. तो 90 डिग्री पे, तो इसमें cos थीटा था तो इसमें sin थीटा हो जाएगा. एंड रेस्ट B और C के बीच में sin थीटा minus 2 by 3 plus 2 by 3. Similarly, K, G and K is also on the Q axis. जैसे G Q axis पे, ऐसे K Q axis पे, तो mg sin थीटा था, यहाँ m के sin थीटा हो गया. मीन्स ये mg m के किस पे डिपेंड कर रहा है? इनके रिलेटिव टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं और उनका डिस्टेंस पोजीशन क्या है. तो these are the, in this way we calculate all this. AF means stator to rotor mutual inductance, stator to rotor mutual inductances. A और F और A के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस था, उनकी वैल्यूज आपने यहाँ निकाल दिया. मीन्स स्टेटर टू रोटर और रोटर टू स्टेटर म्यूचुअल इंडक्टेंसेस मतलब क्या है, हमने क्या निकाल लिए, ये इनकी वैल्यू आपको पता लग गया. ये नाउ व्हाट अबाउट दिस, लेट अस हैव दिस. F का F के साथ, F का H के साथ, F का G के साथ, मीन्स रोटर टू रोटर. ये क्या? रोटर टू रोटर. रोटर टू रोटर मीन्स अगेन यू सी, rotor to rotor means flux in this because of H. Flux of
F because of H, flux of F because of G, flux of F because of K. मीन्स इसमें जो करंट जा रही है उसकी वजह से इसमें फ्लक्स कितना होगा, इसमें जो करंट जा रही है उसकी वजह से इसमें फ्लक्स कितना होगा, इसमें जो करंट जा रही है इसकी वजह से फ्लक्स कितना होगा। तो इसकी वजह से इसमें फ्लक्स कितना होगा, कांस्टेंट होगा ना ये, बिकॉज दिस इज नॉट, देखिए ये दोनों बोथ आर ऑन द सेम एक्सिस। रोटर अगर रोटेट करे या ना करे, इनके बीच का कोई एंगल चेंज नहीं होगा, देयर इज नो रिलेटिव चेंज बिटवीन द टू, इनके बीच के एंगल में कोई चेंज नहीं होगा, तो ये कांस्टेंट हो गया। मींस एफ से एच के बीच में, एच से एफ के बीच में जो फ्लक्स लिंकेज होगा वो कांस्टेंट होगा, और जी से के का, के से जी के बीच में फ्लक्स लिंकेज है वो कांस्टेंट होगा, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू चेंज देयर पोजीशंस। और इसकी वजह से इससे फ्लक्स और इसकी वजह से इससे फ्लक्स क्या होगा, व्हाट विल बी दी, नाउ मिस्टर कार्तिकेय, व्हाट विल बी दी फ्लक्स लिंकेज इन एफ बिकॉज ऑफ द जी, बताएंगे आप क्या होगा कार्तिकेय, जी की वजह से एफ का फ्लक्स लिंकेज क्या होगा। यस मिस्टर कार्तिकेय। हाँ दीपिका, आर यू लिसनिंग मी दीपिका, दीक्षा, नितेश। यस सर। हाँ सुन रहे हैं मुझे, ओनली 10, ओनली 8, 9 आर प्रेजेंट, बकाया लोग कहाँ गए सारे। हाँ नितेश बताओ, नितेश क्या पूछा, संतराम। यस सर। हाँ बताइए, मैंने क्या क्वेश्चन पूछा सर व्हाट विल बी द फ्लक्स, व्हाट विल बी द एफ फ्लक्स और जी के बीच में फ्लक्स कितना होगा सर, एफ की वजह से हाँ जी हाँ में। हाँ बताओ, जी की वजह से एफ पे फ्लक्स कितना होगा, हाँ सर ये बताओ। ये देखिए 90 डिग्री है एक दूसरे से, तो 90 डिग्री है सर, तो कोई फ्लक्स जीरो हो जाएगा, इसमें कोई एक जी दूसरे, सर। इसका फ्लक्स इसमें लिंक ही नहीं करेगा, 90 डिग्री है ना, इसका डायरेक्शन ये होगा, इसका डायरेक्शन ये होगा, तो एफ 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 की वजह से जी से, एफ की वजह से के का, या एच की वजह से, सॉरी ये जी की वजह से एफ का, के की वजह से एफ का, ये सब जीरो होंगे बिकॉज दे आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर। ओके, तो ये हमारा जीरो हो गई। देखिए ये एफ का जी से, जी का एफ से, एफ का के से, ये 90, दे आर प्लेस्ड 90 डिग्री टू ईच अदर, उनका फ्लक्स जीरो हो गया। और एफ का जो सेम एक्सिस पे है उसका कांस्टेंट रहेगा क्योंकि एक्सिस चेंज नहीं हो रहा है। नाउ फ्लक्स ऑफ ए का ए की वजह से, नाउ सी अगेन, नाउ सी फ्लक्स, नाउ फ्लक्स इन ए बिकॉज ऑफ द करंट इन ए, आइए करंट की वजह से, इसी करंट की वजह से इसमें फ्लक्स कितना होगा। देखिए अगर ये रोटर नहीं होता, सपोज करिए लाइक दिस, इसमें ये कॉइल है, इस कॉइल की वजह से फ्लक्स इसी डायरेक्शन में, ये कॉइल है, ऐसा कॉइल मतलब ऐसा रिप्रेजेंटेड है, ये दो पॉइंट है, इसका मतलब दिस कॉइल इज लाइक दिस, इस कॉइल की वजह से इस डायरेक्शन में है जो फ्लक्स होगा, सपोज दैट फाई एलएस फ्लक्स पर यूनिट करंट इज कॉल्ड द एलएस, सेल्फ इंडक्टेंस। लेकिन इज इट क्लियर और नॉट, इसमें ये कॉइल है सेपरेट, देयर इज नो रोटर, इसमें कोई रोटर नहीं है, केवल स्टेटर है, इसमें एक कॉइल है ए डैश है, और इसमें जब करंट जाएगी तो इस करंट की वजह से जो फ्लक्स होगा फाई डिवाइडेड बाई आई, ये विल बी दी इंडक्टेंस, तो इसमें एक इंडक्टेंस एलएस सेल्फ इंडक्टेंस हो गया, दैट इज फिक्स्ड। ओके, नाउ अब है तो सेल्फ इंडक्टेंस, बट यहाँ पे एक आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखा इसी के अंदर, इसी ये कॉइल था ए डैश, इसके अंदर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रख दिया, तो इसका इंडक्टेंस चेंज हो जाएगा कि नहीं। तो सेल्फ इंडक्टेंस था, उसके अलावा इसमें एडिशनल दिस विल आल्सो, ये सेल्फ इंडक्टेंस है, इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में होकर फ्लो करेगा, इसलिए इट विल चेंज। तो कितना हो जाएगा, फाई एन एलएस तो था ही, एलएस प्लस इसका एमएस,
इसका इंडक्टेंस की वजह से म्यूचुअल रोट मीन्स जो हमारा रिलक्टेंस पोर्शन था, ये परमेबिलिटी इसकी बढ़ गई, इसकी परमेबिलिटी बढ़ गई बिकॉज आपने इसमें आयरन पीस रख दिया, रोटर रख दिया, तो ये बढ़ गया। अब रोटर की पोजीशन अगर चेंज हो रही है, रोटर इज चेंजिंग, रोटर की पोजीशन चेंज हो रही है, उसकी वजह से भी इसमें फ्लक्स चेंज होगा। सो रोटर की वजह से जब फ्लक्स चेंज होगा तो ये हमारा इक्वेशन अगेन इट विल बी लाइक दिस, ls lm cos 2 थीटा, और इसमें थीटा माइनस 2π/3 थीटा प्लस 2/3। तो इसी तरह रोटर की इक्वेशंस, वी राइट द इक्वेशन फॉर रोटर। तो ये जितनी भी इक्वेशन है, नाउ वी आर एबल टू नो all these equation after putting those equation in this matrix form. If we can we see it as देखिए अभी वी विल शो इन डिटेल। ये अब आप शॉर्ट में देखिए, जो हमारे फ्लक्सेस थे फाई ए, फाई बी, फाई सी और फाई एफ एच जी के, ये फ्लक्सेस हो गए। ऑल द इक्वेशन जो हमने एल ए एल एस एस, एल आर आर, एल आर एस एस, एल एस आर एस जो डिराइव किए थे वो सभी इसमें रख दिए। तो फाई और आई के बीच में रिलेशन आ गया, फाई ए बी सी, फाई एफ एच जी के, आई ए बी सी, आई एफ एच जी के, ये रिलेशन आ गया। इसको अगर हम डिटेल में फिर अगर देखेंगे तो इसको ठीक अगेन दोबारा से आप इसको इस फॉर्म में देखिए, आप उसकी वैल्यू रखने की मैट्रिक्स फॉर्म में रखा। देखिए ये फाई ए, फाई बी, फाई सी, फाई एफ एच जी के, फाई इज इक्वल टू दी इंडक्टेंस है, ऑल द इंडक्टेंसेस और दीज आर द करंट। मींस ये क्या बन गया, फाई इज इक्वल टू, ये कैसा रिलेशन पहले भी था, फाई इज इक्वल टू एल आई, फाई इज इक्वल टू ये इंडक्टेंस हो गया और ये करंट हो गया, ये हमारी मैट्रिक्स बन गई। नाउ 6 इक्वेशन, ऑल द करंट्स रेफर्ड ऑन, ऑल द करंट, नाउ ये आई आई बी आई सी है और ये एफ एच जी के है, तो ये हमारा फाई इज इक्वल टू एल आई का रिलेशन बन गया। इसमें नाउ व्हाट वी विल डू, ये रखने के बाद नाउ वी विल कन्वर्ट एबीसी इनटू डीक्यू फ्रेम रेफरेंस। जब एबीसी इसको हटाना है, मींस फॉर फर्दर एनालिसिस, फॉर फर्दर कैलकुलेशन, एबीसी को डीक्यू जीरो में पाथ ट्रांसफॉर्मेशन हमने आपको कल डिटेल में समझाया था। इफ देयर आर एबीसी एक्सिस current IA, IB, IC, if these current are referred on the rotor side, that is the IDIQ0, which are 90 degree to face IDIQ0, then this is the matrix. From by multiplying this matrix in the IABC, we can refer on the IDQ0, or vice versa. If it is a P, then P inverse, if you multiply here, you can get reverse back IDQ to ABC frame of reference. Okay, so now again say there are so now there are two equation. You see phi dq0 हमने क्या लिखा है, phi dq0 को we can convert into T phi ABC, means जो फ्लक्सेस थे हमारे, जो फ्लक्सेस हैं बिकॉज ऑफ आई ए फ्लक्स फाई ए, फाई बी, फाई सी, देयर आर 3 फ्लक्सेस, फाई ए, फाई बी, फाई सी, ये ठीक से देख नहीं रहा बट इट इज ए फाई ए, फाई बी, फाई सी, दे आर रिलेटेड विद द पार्क ट्रांसफॉर्मेशन P विद फाई dq0, मतलब जो फ्लक्स फाई ए, फाई बी, फाई सी है उसको हम dq0 में विद द हेल्प ऑफ P, बाय मल्टीप्लाइंग P यू कैन कन्वर्ट इट, एंड दिस इज अनदर इक्वेशन, दिस इज द सेम फाई एफ एच जी के, फाई एफ एच जी के, सेम इक्वेशन, हमने दोनों तरफ सेम चीज लिख दिया है। मतलब ये ऑलरेडी dq0 पे, एफ एच डी एक्सिस पे है, जी और के क्यू एक्सिस पे है, सो फाई एफ एच जी के, फाई एफ एच जी के, मतलब इसमें यूनिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे देन नो प्रॉब्लम। तो दीज टू इक्वेशन इफ यू राइट इनटू द साइमल्टेनियसली, अगर दोनों ये दोनों इक्वेशन ध्यान से देखिए, इन दोनों इक्वेशंस को, दोनों इक्वेशन अपने आप में करेक्ट है, इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप जॉइंटली लिखेंगे तो ये ऐसे लिख सकते हैं, ये वही इक्वेशन है फाई dq0 P फाई ABC, इन दोनों इक्वेशन को फाई और फाई एफ एच जी के इक्वल टू फाई एफ एच जी के, दोनों इक्वेशन को एक साथ रखेंगे तो ये लिख सकते हैं। मींस इन दोनों को ओपन करेंगे तो एक तो ये इक्वेशन आ जाएगी, एक यूनिटी मैट्रिक्स है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यू कैन गेट फ्रॉम हियर टू हियर दिस इक्वेशन,
ओके, अब देखिए, अब हमारा पर्पज क्या है? पर्पज इज के एबीसी को रिमूव करके सारी चीजें हमें DQ0 पे ले जानी है। तो इसमें 5 DQ0 ये मैट्रिक्स हो गया, ये मैट्रिक्स हो गया 5, और ये था 5 ABC 5 FHK, जो जस्ट अभी मैंने एक बड़ी मैट्रिक्स डिस्क्राइब की है, वो यही है 5 ABC 5 FHK इज दिस इक्वेशन LSS LRSS। ये देखिए अगेन, अगर आप देखना चाहें यहाँ पे दोबारा से, ये जो शॉर्ट में लिख दिया था मैंने, ये था ना, इसको शॉर्ट में यहाँ इसको लिखा है 5 ABC FHG की जगह ये आ गया, ये LSS LRS 5 ABC। तो this is written here, this is written here, ओके। और 5 ABC, ये अभी आपने IABC IFHK, इसको सेम IABC, जैसे IABC देखिए ये IABC में P का मल्टीप्लाई करेंगे तो IDQ0 हो जाएगा, ओके। सो IABC की जगह हमने P इनवर्स IDQ लिख देंगे, तो ये IABC का ये इसको P इनवर्स IDQ0, तो ये आ गया। तो ये P आपको पता है, P इज दिस मैट्रिक्स, P इज दिस मैट्रिक्स, U is the identity matrix of 4x4 means 1 1 1 1 diagonal side and others are 0। और ये P इनवर्स है, इसका ये इनवर्स है, ये है, और ये इसका इनवर्स है। तो इसको जब आप सॉल्व करके देखेंगे, यू सॉल्व इट, इसको दिस इज आई एम गिविंग दिस यू एज एन असाइनमेंट, इसको आप सॉल्व करके देखेंगे, देन यू विल गेट, क्योंकि देखिए इसमें यू नो एवरीथिंग, ये इसमें सभी की वैल्यूज आपको मालूम है, अभी हमने ड्राइव किया है। ये P है जो ये मैट्रिक्स है, P इनवर्स है, इसका इनवर्स है, U आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इसको आप करेंगे तो ये 3 और ये 7 का मैट्रिक्स है, जिसमें मोस्टली 0 और 1 है, इसमें मोस्टली 0 और 1 है केवल इसको छोड़ के, ऐसे ही इसमें मोस्टली 0 और 1 है केवल इसको छोड़ के। तो इसमें ज्यादा मल्टीप्लाई करने में बहुत दिक्कत नहीं आने वाली है, आप एक या दो, कोई भी 2 टर्म सॉल्व करके देख लें, जिससे आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि जो हमने ये लिखा है दैट इज करेक्ट। मीन्स ABC को, अब देखिए इसमें ABC गायब हो गया, DQ0 में कन्वर्ट कर दिया। ऑल द फ्लक्सेस 5 DQ0 5 FHG, 5 DQ0 क्या है? फ्लक्स ऑफ ABC स्टेटर फ्लक्स रेफर्ड ऑन द रोटर साइड, और ये क्या है? रोटर फ्लक्सेस। सो ऑल द फ्लक्सेस हैव द रिलेशन विद द ऑल करंट्स। IDQ0 क्या है? स्टेटर करंट रेफर्ड ऑन द रोटर साइड, और ये रोटर करंट इटसेल्फ। तो ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। दिस इज वन मैट्रिक्स, दिस इज ए मैट्रिक्स। तो इसमें एवरीथिंग इज ऑन द रोटर साइड, जब एवरीथिंग इज ऑन द रोटर साइड देन वी आर एबल टू सॉल्व इट। वेयर दो LD LQ L0 जो आपने इसको मैट्रिक्स को निकालेंगे तो इसकी वैल्यू है, ये है LS MS 3/2 LM, दीज आर द सम वैल्यू LQ L0 एंड KD, इसके अंदर जो KD लिखा है दैट इज √2/3। ओके, सो इस इक्वेशन को अगेन इन शॉर्ट वी कैन राइट लाइक दिस, phi is equal to Li। ये इक्वेशन वैसी बन गई अगर हमारा जो इक्विवेलेंट मॉडल हम बनाते हैं सिंक्रोनस मशीन में, जहां हम छोटा स्मॉल इक्विवेलेंट सर्किट होता है, phi is equal to L into I, तो वही हमारा ये phi is equal to L into I है। ये डिटेल मॉडल है, क्योंकि वहां केवल एक ही फ्लक्स कंसीडर करते हैं एक फेज का, यहाँ हमने सारे फ्लक्सेस कंसीडर किए हैं। अब ये phi is equal to Li बन गया। इसको सॉल्व करके देखो, उससे हम क्या करते थे, phi is equal to Li, फिर उससे d∅/dt से हम वोल्टेज इक्वेशन निकाल, V इक्वल टू क्या था, d∅/dt, उसे वोल्टेज इक्वेशन निकालते थे। ऐसे ही इसको जब हम सॉल्व करेंगे, phi is equal to L into I, तो वोल्टेज इक्वेशन बनेगा। ओके, सो फॉर वोल्टेज इक्वेशन अगेन लेट अस हैव, ये स्टेटर साइड की जो वोल्टेज phi A, phi B, phi C था, ये एक्चुअली में दे हैव बीन कन्वर्टेड इनटू 5 DQ0, और रोटर साइड की जो वोल्टेज था phi FHG के, वो हमने phi R शॉर्ट में लिखते हैं, ये phi F लिखते हैं। तो इज दिस क्लियर और नॉट अप टू नाउ? यहाँ पे हमने क्या किया है, वी हैव रिफर्ड ऑल द फ्लक्सेस, ऑल द करंट्स ऑन द रोटर साइड। इज इट क्लियर और नॉट?
Yes, sir. So I hope it is clear.